Okay, so very good morning, dear students. Previously, we talked about SLL, that is singly linked list. Okay, so I hope everyone revised this concept, how singly linked list will created, how to display it, how to delete, how to insert, all operation we have clear. Okay, so first of all, I'm creating singly linked list now. Okay, this is our singly linked list. Okay, so revised one thing again here. Okay, this is single linked list. Suppose I am storing 10, 20, 30, and last one is 40. Okay, the last element, last node will be null here. Okay, this is our singly linked list. Okay, now previously we have create the node, we have clear. Second point is we have displayed, display भी किया था हमने. Third, insert operation. Okay, so we have cleared that operation also. Okay, that is insert operation. Now insert at begin and end we have completed. Begin, then end, then between. Okay, these operation we have clear. Fine. Okay, after that we have cleared the operation of delete. Delete operation also completed. In that again begin and end and between also. Okay, so these operation we have finished previously. Okay, now today we have to focus on how to do the sorting. Okay, sort function कैसे execute होगा, means we have to sort our list. Okay, so sorting, for the sorting purpose what we'll do, again we need to focus on main part, that is how the sorting will do. Previously everyone knows how sorting will do. We have to arrange the element in ascending or either descending order. Okay, let's say I'm taking the example for sorting. Let's say I'm taking this linked list. Now I'm storing the 40 first, 40, then our 30 node, then 20, okay, and then 10. Okay, fine. So this is our linked list. Okay, now we focused on that values now. Fine. Okay, so basically first of all we have to do the sorting. So no doubt linked list का starting head, main leader कौन होता है, head, everyone knows. Okay, so sort करना है. So what do you think about it? Okay, sorting के लिए क्या आएगा? No doubt if we are using different kind of sorting technique, that is bubble sort, insertion sort, selection sort, whatever you want. Okay, so now we are taking any one here. Okay, so sorting means we have to compare first node element into second. Okay, second compare with third, third compare with fourth. Okay, if it is first node is greater than second, then we need to do the sorting here. Okay, so for a sorting purpose we have to focus on that part here. Okay, so what exactly it is? Okay, so initially we have to focus on the main part is function we are going to start, that is void sort. Okay, so we have to sort that element. Okay, so for sorting purpose what we have to do here? Okay, so what do you think about it? No doubt our main leader starts from whom? Again we have to take one temporary variable. Always knows that head always pointing to where? Head always pointing to the starting node, right? Head का point करेगा हमेशा? Head always pointing to where head will point? The starting of node. Fine, and there is a element is stored. Okay, now for sorting purpose we have to take temporary variable, that is temp we are taking. Okay, so temp variable I am taking here. Now it's visible, dear students. Okay, it's visible to all. That is we required one temporary variable. So एक temp नाम का variable मैंने declare किया. Let's say here I am declaring node star temp variable. Okay, and always remember that we are always starting the operation of linked list from head. So no doubt temp को हम कहाँ allocate करेंगे? To head. Okay, so head को allocate किया मतलब हमारा head का temp का point करेगा हेड की जगह पे, मतलब दोनों एक जगह पे पॉइंट कर रहे हैं. ओके, अभी सॉर्टिंग करना है. तो सॉर्टिंग का कंसेप्ट एवरीवन नोज. ओके, इट रिक्वायर्स टू फॉर लूप. ओके, सो फॉर लूप हम लोग लेने वाले हैं फॉर अकॉर्डिंग टू एरे डेटा स्ट्रक्चर. ओके, अकॉर्डिंग टू एरे सेम फॉर लूप हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट फॉर लूप विल बी इक्वल टू व्हाट? वी आर टेकिंग दैट फॉर लूप हियर.
Okay, so just concentrate here now. The first for loop that we have to take. Okay, so which for loop required here? Okay, that we need to concentrate. Okay, now again for loop में पहला क्या आता है? This is initialization part. So temp का point करेगा, temp pointings to head. We have initial it upper side, but no problem, we can declare here also. Okay, so temp equals to head. Okay, after that what is the termination condition here? Temp head से start होगा, मतलब starting से temp should not be null. अभी हम लोग for loop यूज कर रहे हैं. So for loop में क्या होता है? There are three parts. First part is initialization part, second part is condition, and next one is what? Incrementation or decrementation. Okay, so initially temp equal to head को point कर रहा है, temp should not be null. And what is the next part? Incrementation part means here incrementation means with our Pragatika line means temp equal to temp of next. Okay, this is our statement. It's temp equal to temp of next, मतलब temp next को जाएगा. Okay, so यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? फाइन. सो हमारा टेम्प, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, टेम्प हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हेड से स्टार्ट हो रहा है. ओके, इनिशियली टेम्प और हेड एक जगह पे पॉइंट कर रहा है. सॉर्टिंग करना है, सो इट शुड नॉट बी नल. उसमें वैल्यू नहीं होगा तो वी कैन नॉट डू द सॉर्टिंग. दैट्स व्हाई दैट दिस इज टर्मिनेशन कंडीशन. Temp is not equal to null and we are going to traverse the temp, that is temp equal to temp of next value के लिए. Okay, now again two for loops are there. मतलब पहला temp इसको है, ये 40 का नाम हमें पता चला, that is temp. And always know that in linked list we should know two pointer name. Okay, इसका भी नाम पता होना जरूरी है. तो अभी हम क्या करेंगे? सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे. That is second variable, that is temp1. I am declaring one variable, that is temp1. और वो temp1 जो वेरिएबल है वो किसको पॉइंट कर रहा है? temp of next को. Okay, I am writing here one statement, temp1 equal to temp of next. इसका मतलब क्या हुआ? temp का जो next है 40 का जो next है 30, उसका नाम क्या डाल दो? temp1. मतलब इसका नाम हो गया temp1. Okay, now means we have two variable name, first one is temp and second one is temp1. Now we can do the sorting. Okay, sorting हम easily कर पाएंगे. That's why second for loop पे फिर से क्या आएगा? In this for loop again we have to start second for loop here. For temp1 नाम का वेरिएबल हमने लिया, temp1 इक्वल टू वो किसको पॉइंट कर रहा है? temp of next. ओके, जो temp का next है वो temp1 बन जाएगा, मतलब दो पॉइंटर नेम हम लोगों को पता चले. ओके, temp of next. And secondly what we have to do? The temp1 should not be null. Okay, temp1 is not equal to null. Again same, we have to traverse the temp1. Temp1 equal to temp1 of next. Okay, so same traversal condition we have to use here. Okay, so two for loops are required for sorting. First for loop for first node, that is temp. Second one will be what? temp1 equal to, second for loop for what purpose? सेकेंड नोड के लिए, मतलब पहला वाला उसका डेटा हमने temp1 में स्टोर किया, temp में स्टोर किया, second one will be temp1. Okay, so we are going to store likewise. Okay, so I hope again I'm revising here for sorting purpose. पहला वाला जो temp है वो किसको पॉइंट कर रहा है? 40 को. Then temp is here, temp equal to head. Okay, it should not be null and it traverse. Okay, next node. Second, for temp equal to temp1 नाम का वेरिएबल लिया, temp1 pointings to temp of next here. temp ओके मतलब ये हमारा temp1 बन गया, इट शुड नॉट बी नल एंड temp1 इक्वल टू temp ऑफ नेक्स्ट. अभी दो फॉर लूप बन गए, अभी बहुत सिंपल हो गया. अभी हमें क्या करना है? जो हम लोगों ने नॉन टेक्निकली हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा था सॉर्टिंग का, मीन्स वी हैव टू टेक, सपोज आई हैव टेकन 2 पॉट्स, सपोज इसमें टोमेटो है, इसमें मैंगो है, सो आई नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम टोमेटो इंटू मैंगो, मैंगो इंटू टोमेटो. तो टेम्पररी पॉट लेना पड़ता है. तो टेम्पररी पॉट लिया तो पहले ये मेरा टेम्पररी पॉट है. ओके, सो टोमेटो को पहले इधर डाल दो, इट्स हैविंग ओनली 3 कैपेसिटी टू स्टोर द एलिमेंट. सो ये टोमेटो मैंने यहाँ पे डाल दिए, फिर मैंने ये मैंगो उठा के टोमेटो में डाल दिए, ये मैंगो बन गया. फिर इधर के जो टोमेटो है मैंने यहाँ पे डाल दिया, मतलब ये टोमेटो बन गया. ओके, मीन्स ये मैंगो टोमेटो. लाइकवाइज वी हैव टू डू द सॉर्टिंग यूजिंग थर्ड pot. Okay, so similarly here we have to take temporary variable now. जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था, सिमिलरली एरे में जैसे हमने किया था वैसे हमें किस में करना है? लिंक लिस्ट में करना है. सो इसीलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू चेक द कंडीशन हियर. ओके, नाउ वी फोकस्ड ऑन दैट कंडीशन हियर. जस्ट कॉन्सेंट्रेट. if condition, if
temp of data, because we are performing operation on data part. If temp of data is greater than temp1 of data, okay, temp1 of data से greater होगा तो क्या करना पड़ेगा? We have to do the sorting. Okay, sorting करने के लिए मतलब फिर से मुझे टेम्पररी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा. सो अगेन आई एम डिक्लेयरिंग हियर नेक्स्ट वेरिएबल, दैट इज नोड स्टार temp2. ओके, सो सेकेंड वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, दैट इज नोड स्टार temp2 हियर. ओके, सो ये temp2 किसके लिए होगा? फॉर सॉर्टिंग पर्पस. ओके, नाउ अभी बहुत सिंपल हो जाएगा. सो temp2 नाम के वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करूंगी? temp2 में क्या स्टोर होगा? व्हाट इज द वैल्यू इन temp2 नाउ? ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट. temp2 में क्या स्टोर होगा? जो बड़ा वाला है, दैट इज temp ऑफ डेटा. ओके, फाइन. सो नाउ दिस, ओके, सो कंडीशन क्या है? इफ temp ऑफ डेटा, temp ऑफ डेटा मतलब फर्स्ट जो नोड का डेटा रहेगा, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, पहला वाला नोड है दूसरे से बड़ा रहेगा, देन इफ temp ऑफ डेटा इज ग्रेटर देन temp1 ऑफ डेटा, देन व्हाट वी हैव टू डू हियर? वी हैव टू डू द स्वैपिंग हियर. ओके, तो स्वैपिंग कैसे होगा? temp2 नाम का हमने टेम्पररी वेरिएबल लिया है. सो हियर temp2 ऑफ डेटा में क्या स्टोर होगा? temp2 ऑफ डेटा में जाएगा temp1 ऑफ डेटा, सॉरी temp ऑफ डेटा जो बड़ा है. ओके, सो temp ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर हियर. ओके, नाउ temp में कौन चला जाएगा? temp1 ऑफ डेटा. temp ऑफ डेटा में कौन चला जाएगा? temp ऑफ डेटा. ओके, so there will be temp1 of data, and temp1 of data में कौन चला जाएगा? temp1 of data में कौन स्टोर हो जाएगा? अपना जो temp2 में स्टोर किया था, दैट इज temp2 of data. temp2 of data. Fine. And finally we have completed this if loop, this for loop, completed all this, and we have to call display function here. We are going to calling display function. So according to this we have finished the sorting techniques. Okay, जैसे हमने array में देखा था, similarly we have to do the sorting in linked list data structure. Okay, so just comparing for again using this for loop for temp equal to head. So temp point कर रहा है 40 को. ओके ओके, temp 40 को पॉइंट कर रहा है, एंड 40 इज नॉट नल. ओके, अंदर गया. temp1 मीन्स temp का जो नेक्स्ट है वो temp1 बन गया, मतलब 30 इज temp1. नाउ चेक द वैल्यू इन इफ लूप. 40 ऑफ डेटा मीन्स 40 इज ग्रेटर देन 30. यस, अंदर जाएगा, फिर स्वैपिंग करेगा. temp2 नाम के वेरिएबल में मेरा कौन स्टोर हो जाएगा? 40. temp2 में 40 चला गया. ओके, फिर temp1 में क्या डाल दिया? temp में 30 डाल दिया. फिर अभी temp1 में 40 डाल दिया, मतलब temp1 में कौन चला गया? 40. सो लाइकवाइज यहाँ पे कौन चला गया? 30, और यहाँ पे कौन चला गया? 40. सो लाइकवाइज वी हैव टू डू द स्वैपिंग है. तो यहाँ पे हमने बबल सॉर्ट का लॉजिक इंप्लीमेंट किया है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू द सॉर्टिंग हियर. जैसे हमने लिंक लिस्ट में एरे में किया था, सिमिलरली वी हैव टू डू इन लिंक लिस्ट. ओके, सो आई होप एवरीवन क्लियर द concept. Okay, so now we'll start. The next function is void concatenation. Concatenation means we have to concatenate two link here. Okay, so concatenation कैसे करना है? मतलब combine करना है हमें दो link list. Okay, मतलब हमारा जो original list है, मान लो this is our original list that we have created. I'm giving the title of that list is original list. Okay, this is what original list is. Okay, my question is that, dear student, whether it's on original list here. Okay, this is our original list. Let's say I'm taking 10 first list. Okay, the next one will be 20, then 30, okay, then 40. This is our original list is, and our head starts from here. Okay, ये अपना हेड है. ओके, पहला वाला हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे. दिस इज आवर ओरिजिनल लिंक. ओके, कॉन्कैटिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू लिस्ट. ओके, सो सेकंड वाली जो लिस्ट है वो हमें क्या करनी पड़ेगी? फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी. ओके, सो बेसिकली वी हैव टू क्रिएट फंक्शन. यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा. क्रिएट मीन्स व्हाट? बेसिकली आई एम टेकिंग वन टेम्पररी वेरिएबल temp
स्टार इक्वल टू हेड, ये तो सबको पता है. फर्स्ट लाइन ऑलवेज देयर, दैट इज फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पज वी आर टेकिंग टेम्पररी वेरिएबल एंड इट्स पॉइंट्स also the first node of linked list. Okay, this is we have initialized. Okay, now just concentrate here. Okay, this is our what temp is, and we have allocated this one. Okay, now we have to create whole the linked list. now सिर्फ सिंगल नोड क्रिएट नहीं करना है, हमें दो लिस्ट को, पूरे लिंक लिस्ट को कॉन्केटिनेट करना है, कंबाइन करना है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एक्सेप्ट फंक्शन हियर. एक्सेप्ट फंक्शन में क्या है, हमने क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल किया था, उसमें पूरी लिस्ट क्रिएट की थी. तो यूजिंग दैट फंक्शन हम लोग सेकंड वाली नई न्यू लिस्ट, आई एम गिविंग द टाइटल ऑफ दैट लिस्ट इज न्यू लिस्ट. ओके, अभी न्यू लिस्ट कैसे बना रहे हैं हम लोग? न्यू लिस्ट के लिए द टाइटल इज व्हाट, हमें फिर से पूरी लिस्ट को क्या करना है, क्रिएट करना है. ओके, सो आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. ओके, फाइन. कॉन्केटिनेशन करना है. ओके, सो वी हैव क्रिएटेड न्यू लिस्ट हियर यूजिंग एक्सेप्ट फंक्शन. तो मैंने नई लिस्ट बनाई यहाँ पे, इसमें लेट से मैंने वैल्यू डाली है. फर्स्ट वन विल बी व्हाट, दिस लेट से 50, सेकंड नोड की वैल्यू है 50, देन हियर it's not visible 50, then next node will be what, here 60. Okay, and next one will be what, 70. Okay, this new linked list we have created here. Okay, so according to that again जो नई लिस्ट है उसका भी क्या रहेगा, हेड रहेगा. ओके, उसका भी कौन आएगा, नया वाला हेड. मतलब ये हेड है और ये भी हेड है, मतलब ये ओरिजिनल लिस्ट का है और ये न्यू लिंक लिस्ट का हेड है. अभी कैसे करेंगे हम लोग, वी हैव टू कॉन्केटिनेट, मीन्स वी हैव टू ट्रैवर्स फर्स्ट लिंक लिस्ट अप टू द एंड, और एंड का जो लास्ट है वो हेड को अटैच करना है. क्या करना है हमें, फर्स्ट लिस्ट का जो लास्ट है उसको कहाँ कनेक्ट करना है, अप टू द फर्स्ट नोड ऑफ सेकेंड लिस्ट. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके, बिफोर दैट वी आर टेकिंग फॉर सेकेंड वेरिएबल. ओके, मतलब इसका जो नाम है वो नाम हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो इसका भी नाम हेड है, सेकेंड लिंक लिस्ट का भी नाम हेड है. इट्स नॉट लाइक दैट, वी हैव टू रीनेम दैट हेड. तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, एक्सेप्ट फंक्शन के बाद हेड 2 नाम का वेरिएबल ले रही हूँ, हेड 2. ओके, स्टार हेड 2, वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, सेकंड हेड को. मतलब सेकंड जो लिस्ट है हमारी, जो सेकंड लिस्ट जो है ये हेड, इसको कौन पॉइंट कर रहा है, हेड 2 पॉइंट कर रहा है. इसका मतलब है इसका भी नया नाम हो गया हेड 2. ओके, मतलब पहले वाली के नाम हेड है, दूसरे वाली का नाम हेड 2 है. तो अभी सिंपल हो जाएगा. ओके, पहले वाली लिंक लिस्ट हमने क्रिएट करके रखी थी, उसका स्टार्टिंग का पॉइंटर हेड है. सेकंड वाला एक्सेप्ट फंक्शन यूज करके वी हैव क्रिएटेड सेकंड लिस्ट, और सेकंड लिस्ट का हेड का नाम दे दिया हेड 2. एग्री, अभी बहुत सिंपल हो जाएगा. नाउ अगेन वी आर इनिशियलाइजिंग हियर टेम्प. पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प कहाँ पे जा रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है. ओके, मतलब यहाँ पे ये टेम्प ट्रैवर्स करेगा. अभी बहुत सिंपल है, हमें कहाँ जाना है, एंड तक जाना है. कहाँ तक, 40 तक जाना है. मतलब अपना जो टेम्प है वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए, यहाँ पे टेम्प कहाँ जाना चाहिए, लास्ट नोड को. मतलब वी हैव टू डू द प्रगति का लाइन. तो क्या स्टेटमेंट आएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट. ओके, कहाँ जाएंगे हम लोग, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, दैट इज ट्रैवर्सल लिस्ट. बट कहाँ तक ट्रैवर्स करना है, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं आता, क्योंकि इसका फर्स्ट ओरिजिनल लिस्ट के लास्ट नोड तक जाएंगे तो उसका नेक्स्ट सिंपली यहाँ तक कनेक्ट कर देंगे, फिनिश. तो बहुत सिंपल है. तो यहाँ पे मैं कंडीशन ऊपर लगाऊंगी, कब तक मुझे ट्रैवर्स करना है, while temp of next is not equal to null. temp of next is not equal to what, null. जब तक temp का next null नहीं होता तब तक हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है. तो ये while loop का स्टेटमेंट सबको समझ में आया. ओके, हमने क्या किया, वी ओरिजिनल जो लिस्ट है उसको टेम्प असाइन किया, उसका स्टार्टिंग का पॉइंट, उसको कहाँ तक ट्रैवर्स किया, एंड तक. वाइल टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं आता तब तक ट्रैवर्स कर. टेम्प यहाँ पे आ गया. अभी बहुत सिंपल हो गया. सिंपली ये टेम्प, ये एरो है, एरो का लाइन लिखना है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू हेड 2, फिनिश्ड. तो हम क्या लिखेंगे, टेम्प ऑफ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू whom, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू हेड 2. हेड 2 मतलब वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, सेकेंड लिंक लिस्ट के पॉइंटर को. मतलब टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू हेड 2. सिंपल हो गया. अभी फिर से जो पॉइंटर है, मान लो हमें क्या करना पड़ेगा,
जो हेड है उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। मतलब फिर से हमारा डिस्प्ले कहाँ से होना चाहिए, यहाँ पे। इसलिए मैं अभी नाम दे रही हूँ हेड। हेड में फिर से मुझे क्या स्टोर करना पड़ेगा, आई एम टेकिंग अनदर वेरिएबल दैट इज हेड वन। हेड वन मतलब क्या, एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल का डिक्लेयर किया, कौन सा वाला, जो पहला वाला है, मतलब पहले वाले का स्टोर करना जरूरी था। जो मैंने टेम इक्वल टू हेड किया, यहाँ पे मैंने इसका भी नाम देना चाहिए था, हेड वन इक्वल्स टू हेड। मतलब क्या, पहले लिंक लिस्ट के हेड का नाम क्या है, हेड वन, और सेकंड का नाम क्या है, हेड टू। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखो, ये टेम यूजिंग टेम पॉइंटर ट्रेवर्सल किया एंड तक। वाइल टेम का नेक्स्ट नल नहीं आता तब तक ट्रेवर्स कर, टेम इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ये टेम बन गया, इसका नेक्स्ट कौन बन गया, हेड टू, फिनिश। टेम का नेक्स्ट हेड टू। अभी क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करते हुए कहाँ से करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंटर। इसीलिए अभी फिर से हेड वन जो था, ये स्टार्टिंग का हेड वन, उसको किस में स्टोर किया, हेड में। अभी सिंपल हो गया, सिंपल कॉल द डिस्प्ले फंक्शन। ओके, जब हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, इट विल डिस्प्ले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, finished. So according to that, we have display concatenate to list, for original list first, second list. It's very simple function. Using that, we can do the concatenation of two lists. Okay, so I hope everyone clear this function now.